Hello students, welcome back to maths class. Already we have completed 4.3. Now we will move on to 4.4. In 4.4 again we have construction of quadrilateral, and here the quadrilateral name is DEAR, D-E-A-R, DEAR. Here these are all given things. So whenever we are in construction, first we have to draw a rough diagram. अब रफ डायग्राम देखो, तुम लोग डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो या पहले मैं ऐसे करूँगी, एक यहाँ पे फिर से और एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगी. व्हेनेवर वी ड्रॉ रफ डायग्राम लाइक दिस, रैंडमली वी नेम इट. हमें कोई आइडिया नहीं रहता है कि कैसे नेमिंग करना है, इजंट इट. तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली नेमिंग कर देते हैं, DEAR. आफ्टर दैट we put the value. DE is equal to 4. DE is 4 centimeter. EA is equal to 5 centimeter. And then AR is 4.5. This is 4.5. And angle E is 60. And angle A is 90. So when we draw this rough diagram, we are getting like this. अब तुम लोग खुद सोचो, यहाँ पे इधर दिया है, एक लाइन दिया है और यहाँ पे 2 एंगल्स दिया है. ओके, बट मैंने रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है, यहाँ पे दिस इज़ माई बेस. अब बेस में ये 60 है, तो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हमें टफ पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगी, इसको रिवर्स कर दूँगी, नेमिंग में मैं चेंज कर दूँगी. देखो कैसे चेंज होगा ये. दिस इज़ अ क्वाड्रिलैटरल. अब तुम लोग देखो, यहाँ पे EA आया है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 60 है, 90 है. तो मैं इस EA को यहाँ पे नेमिंग कर दूँगी. दिस इज़ E एंड दिस इज़ A. ओके, तो ये मेरे लिए इजी रहेगा. EA दैट आई हैव ड्रॉन हियर, आई एम टेकिंग एज अ बेस EA. सो DEAR, दिस वन विल बिकम DEAR. नाउ एंगल E is given 60, angle A is given 90, and AR is given 4.5, EA is given 5 centimeter, and DE is given 4 centimeter. Now if we draw like this, construction becomes very easy. First I will start with EA is equal to 5 centimeter. You draw EA is equal to 5 centimeter. So this is EA, which is 5 centimeter. Now at E we have to construct 60, and all of you know 60-degree construction. This was the basic of construction जो मैंने बेसिक वीडियो में सिखाया था. कंस्ट्रक्शन में बेसिक एंगल ही हमारा 60 है, and you know how to construct. So I am not going to explain, I will draw directly. So first cut is 60 degree. Join this point and this. So with this I have constructed E as 60 degree. After that A is 90 degree. अब A कैसे आए देखो, left to right. So I will take A as my center, take any radius, and you know construction of 90 degree, and keep the point here. First cut, then second cut, then top cut. If you don't remember this 90-degree construction, you can see the basic video and then you will understand the construction. So I am joining this point. Now I got angle A as 90 degree and angle E as 60 degree. After this, I know ED. ED is 4 centimeter. So you take rounder, then measure 4 centimeter. With the help of rounder, this is 4 centimeter. Then keep the rounder point on E, cut this.
So this I got as D point because I have taken ED as 4 centimeter, so I got D point. Now AR is 4.5. So again with the help of rounder measure 4.5. So this is 4.5. AR is 4.5. So keep it on A point and cut this. So this is R point. Now you join DR point. Join both the intersection point. See, this is the construction of first question, that is DR. After that, just to write the measurements. So we have completed first question. Students, this is next question. We have to construct here true, quadrilateral true. बिफोर ड्राइंग रफ फिगर मैं और एक रफ फिगर ड्रॉ करूँगी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए. सो दिस इज क्वाड्रिलैटरल. अब मैं देखूँगी कौन सा एंगल्स दिया है R and U. So I will take R and U here. R is 75 and this is 120 and UE, TRUE. Okay, UE is given 4 and RU is given 3 and TR is given 3.5. So this figure is right. कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो सेम फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी. Here I am taking both the angles down. Just I am writing all the measurements. RU is 3 centimeter, UE is 4 centimeter. See, whatever is given I have represented here and you know how to represent. क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा एक्सरसाइज कवर कर लिया है. नाउ माई फर्स्ट टास्क इज टू ड्रॉ व्हाट. यू ओनली टेल मी क्या मुझे ड्रॉ करना है. मैं ये ड्रॉ करूँ, ये करूँ, ये करूँ, क्या करूँ. यस, आई हैव टू ड्रॉ RU. RU is 3 centimeter, so I am drawing 3 centimeter. Now you see here students, RU तो बहुत छोटा है और इस छोटे लाइन पे हमें दो दो एंगल कंस्ट्रक्शन करना है. 120 इज़ वेरी इजी बट 75 बहुत सारा कटिंग्स आता है. सो बी केयरफुल व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग. तो मैं पहले 75 करूँगी. फॉर 75 यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट. पहले 75 के लिए मुझे कौन सा एंगल तक जाना है. मेन बेस एंगल कौन सा रहेगा वहाँ पे 75 के लिए. Yes, 90 I have to construct. So I am constructing 90 here. And you know how to construct 90 degree. Already हमने बहुत बार construction किया है. So this is 90, but I don't want 90 here. I want 75. So for 90 I will take dotted line. Okay, so this I have taken dotted. Now I have to bisect. For 75 I have to bisect this area. All of you know ये हमें bisect करना है. नाउ यू सी हियर, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है तो बहुत ध्यान से हमें कंस्ट्रक्शन करना है. कीप योर राउंडर पॉइंट ऑन दिस 60 डिग्री कट. ओके, कट करो और इस लाइन के अंदर 90 के अंदर हमें राउंडर का रेडियस लेना है. स्मॉल कटिंग्स वी आर गेटिंग एंड देन कीप राउंडर पॉइंट ऑन 90 लाइन. 75 भी हमने किया है बहुत बार. नाउ दिस इज माई मेन लाइन. अब 75 का तो मुझे चाहिए इधर है ना, तो मैं उसको डार्क लाइन से ड्रॉ करूँगी.
So I have done here 75. This is RU and this is 75 degree. After this, at U I have to construct 120. So I am constructing here 120, and 120 is very easy construction. Take rounder of any radius. Take one semicircle like this. Then keep the rounder point here. First cut gives me 60 and keep it on 60 arc. Then take one more cut which gives me 120. So this point and this U, join this. So this is 120. Now after this task is very easy because this is 4 centimeter. तो हमें just राउंडर से 4 सेंटीमीटर लेके कट कर देना है. I am measuring here 4 centimeter. Okay. So U is 4. तो मैं U पे रखूँगी. Then I will take one cut here. After that ऐसे डबल मत करना. Okay. Take one single arc like this. After that it is 3.5. I am measuring here rounder radius as 3.5. Okay. Then RT is 3.5. So take RT as 3.5. बहुत easy construction है. So this is T and this is E. So join this T and E. With this we have completed question number 2. So just to write the measurement 4 centimeter and this is you can write here 3.5 centimeter. So this is TRUE, true quadrilateral. And with this we have completed 4.4 exercise. Only 2 questions were there. So easy. Now we will move on to some special cases. अभी तक 4.4 तक बहुत ज़्यादा हमने डिफरेंट कंस्ट्रक्शन किया है. अब ये अंडर टाइटल आया है सम स्पेशल केसेस. अब इसमें क्या स्पेशलिटी है विल सी. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन टू सम स्पेशल केसेस which are given in 4.5 एक्सरसाइज. हियर इट इज़ गिवन स्क्वायर. स्क्वायर का नाम है रीड. अब रीड करना है हमें. एंड हियर RE इज़ गिवन 5.1 सेंटीमीटर. अब देखो पीछे तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया ना तो बहुत सारा गिवन थिंग्स थे, एंगल, साइड्स, डायगोनल्स. बट हियर वी हैव ओनली वन गिवन थिंग दैट इज RE इज इक्वल टू 5.1. जब भी ऐसे कुछ मेंशन होता है और बहुत ज़्यादा कम कुछ गिवन रहता है ना तो हमें उसका प्रॉपर्टीज याद करना है. दिस इज स्क्वायर एंड यू नो वी ड्रॉ स्क्वायर लाइक दिस एंड दिस इज रीड READ and it is a square if one side is RE is given 5.1. if one side is 5.1 then all are 5.1. सब साइड इक्वल रहता है इन स्क्वायर है ना. खाली ऑल साइड से हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. हमें चाहिए तो डायगोनल चाहिए या एंगल्स चाहिए. एंड डायगोनल फाइंड करना यहाँ पे बहुत टफ होगा. बट वी नो दैट हियर ईच एंगल इज 90 इन स्क्वायर. सो यूज दैट आइडिया. दिस इज 90 एंड दिस इज 90. स्क्वायर में सभी एंगल 90 रहते हैं और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल भी होता है. सो वी आर यूजिंग दैट आइडिया एंड वी आर कंस्ट्रक्टिंग. फर्स्ट यू ड्रॉ RE. आई एम ड्रॉइंग RE. अब ऐसे टाइप क्वेश्चन में मेथड ना 2-3 वैरायटी होता है. मैं यहाँ पे एक वैरायटी सिखा रही हूँ. फर्स्ट यू ड्रॉ RE इज इक्वल टू 5.1. So this is RE which is 5.1 centimeter. After that you see here यहाँ पे 90 degree है. So construct 90 degree at R point and you know how to construct. This time constructing 90 degree.
So 90 I have done. Okay. Now you can construct here also 90 degree. ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं 90 डिग्री दूसरा ड्रॉ नहीं करूँगी. ओके. नाउ आई विल मूव विथ साइड्स. एक बार मैंने 90 कर दिया, अब मैं साइड से जाऊँगी. अब साइड कैसे देखो. आफ्टर ड्रॉइंग दिस 90 आई विल टेक आर डी विच इज़ 5.1. So 5.1 I have taken and R D is 5.1. यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हुआ है तो हम पूरा उसको एक्सटेंड करेंगे. Now this point is a D point. After this, students, see RD is 5.1. You take this also 5.1 and this also 5.1. तो ये ऑलरेडी मैंने 5.1 मेजर किया ही है. सो कीप इट ऑन ई पॉइंट एंड कट दिस. ओके. एंड देन हियर ऑल्सो वी हैव पॉइंट डी. अब डी पे रख के कट करो. क्यों मैं इसे कर रहा हूँ? बिकॉज डी ए इज़ 5.1. सो कट दिस आर. हियर आई गॉट इंटरसेक्शन पॉइंट. Now we join this. So this is square. See, this is READ, read square. You can write here 5.1, 5.1, 5.1 centimeter. So this is the special type of construction. Students, next question is rhombus and here diagonals are given. rhombus का नेमिंग नहीं दिया है तो नेमिंग हम कुछ भी रखेंगे, but here diagonals are given. Do you remember such type of construction already we have done? rhombus and diagonal construction already हमने किया है. सोचो हमने किस में किया है. See students, I am showing you in 4.2 already we have done rhombus band where one diagonal was given 5.6 and another one was given 6.5. तो इस कंस्ट्रक्शन चाहे तो तुम लोग इसका वीडियो फिर से देखना. मैंने कहा था जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 6.5, ऑड नंबर को पहले हमें ड्रॉ करना है, राइट. और इवन नंबर को हमें टच नहीं करना है, ऑड नंबर को ड्रॉ करना है. और इवन नंबर फॉर एग्जांपल ये 5.6 था, 5.6 को 2 से डिवाइड करना है. वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों हमें करना है. सो दिस वाज समथिंग 2.8. इवन नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है और ऑड नंबर को हमें ड्रॉ करना है फर्स्ट, ऐसे मैंने कहा था. नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे दोनों इवन नंबर है, राइट. तो यहाँ पे किसी को भी तुम लोग छोड़ सकते हो और किसी को भी ले सकते हो. जब ऑड नंबर आते तो पहले हमें ऑड नंबर ड्रॉ करना है. अब यहाँ तो दोनों इवन नंबर आया है तो तुम लोग 5.2 भी ड्रॉ कर सकते हो या 6.4 भी ड्रॉ कर सकते हो. सपोज मैं 5.2 ड्रॉ कर रही हूँ तो 6.4 मैंने छोड़ दिया, तो 6.4 का हमें आधा फाइंड करना है, मतलब हाफ ऑफ 6.4 फाइंड करना है. हाफ ऑफ 6.4 इज नथिंग बट 3.2. क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ? बिकॉज इन रोम्बोस, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. इन रोम्बोस दीज आर डायगोनल्स एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स व्हाट? सपोज ए 6.4 है, टोटल 6.4 है, तो बाइसेक्ट मतलब दिस पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दोनों इक्वल रहेगा. ओके. तो 6.4 है तो उसका आधा क्या आएगा? 3.2. सो दिस पार्ट इज 3.2 एंड दिस पार्ट इज 3.2. तो ये बाइसेक्टर आइडिया हमें यूज़ करना है. ओके. इन रोम्बोस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट एट 90. ये 90 वाला कंडीशन भी हमें यूज़ करना है. ओके. सो फॉर दैट first we will draw
मैंने 6.4 का हाफ फाइंड किया है, तो मुझे कौन सा ड्रॉ करना है, जो मैंने छोड़ा था, दैट इज 5.2. I will draw 5.2 first. So this is 5.2. यहाँ पे नेमिंग नहीं दिया है तो हम छोड़ देंगे, वो हम बाद में देखेंगे. ओके. अब आफ्टर दिस मैंने कहा डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, तो मुझे पहले इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है. एंड बाइसेक्टर ऑल्सो राइट फ्रॉम 6 स्टैंडर्ड वी आर डूइंग. राउंड अप पॉइंट यहाँ पे रखना है, मोर देन हाफ ऑफ द लाइन. ऐसे छोटा सा नहीं लेना है, इट शुड बी मोर देन हाफ ऑफ द लाइन. ऐसे लो और ऐसे कट करो, ठीक है. देन डोंट चेंज द रेडियस, जो पहले लिया था वही फिर यहाँ पे कट करना. राइट. नाउ वी आर गेटिंग दीज 2 पॉइंट्स. जॉइन दिस. इसको ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, isn't it? Now this line is perpendicular line. जब भी हम perpendicular bisector ड्रॉ करते हैं तो ये 90 आता है. That is this one. ये हमने A ड्रॉ किया है और यहाँ पे 90 का भी हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया. अब 3.2 एग्जैक्टली ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर. अब मुझे ऊपर 3.2 लेना है और नीचे भी 3.2 लेना है. तो ऑलरेडी मैंने 4.2 में एक्सप्लेन किया है, फिर से अगर चाहिए तो वो वीडियो देख लेना. सो यहाँ पे 3.2 है, सो आई एम टेकिंग 3.2. मैंने लिया. सो आई एम कीपिंग दिस हियर. जो सेंटर आया था वहाँ पे मैंने रखा. फिर आई एम टेकिंग 1 कट लाइक दिस. डोंट गेट स्केर्ड. यहाँ पे दोनों थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा. किसी किसी का नहीं होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन में किसी का होता है और किसी का नहीं होता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है कंस्ट्रक्शन. आई एम टेकिंग डाउन ऑल्सो दैट आर्क. सो आई गॉट. मैं ध्यान से देखूंगी तो मुझे इधर दिखाई दे रहा है, दिस इज पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट. Now I have to join this point with this. So with this we are getting now rhombus. ये rhombus जो हमने ऐसे ड्रॉ किया था रफ फिगर में, वो ऐसे हो गया. एग्जैक्टली इस टाइप का कंस्ट्रक्शन हमने किया. देखो ऐसे आता है, ये तो रफ फिगर है, ये ऐसे कर लिया. ओके. सो दिस वाज 5.2 दिस बेस एंड दिस टोटल 6.4, लेकिन हमने ये 3.2 लिया, तो टोटल कितना आएगा 6.4. मैंने यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ नहीं किया है, दैट यू कैन डू बाय योर सेल्फ. अब इसको नेमिंग कर सकते हो तुम लोग, चाहिए तो ABCD. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ rhombus. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स 5 and 4. अब दिस इज ऑल्सो वेरी इजी कंस्ट्रक्शन, जस्ट लाइक स्क्वायर. रेक्टेंगल है, सो आई एम ड्रॉइंग रेक्टेंगल. एंड एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाला, सो आई एम टेकिंग दिस एज 5 cm and this as 4 cm. And in rectangle we know opposite sides are equal, so this is 5 cm and this is 4 cm. Equal condition. And in rectangle again each angle is 90 degree. Okay. तो ये आइडिया जैसे हमने स्क्वायर में किया था वैसे यहाँ पे हमें करना है. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ड्रॉ 5 cm. ये तुम लोग अपने आप भी कर सकते हो. I am drawing here 5 cm. After this, see I have done this. Rectangle का नेमिंग नहीं है तो तुम लोग कर सकते हो ABCD. So I have done AB here. Then at A construct 90 degree.
सब में 90 डिग्री आता है, सो 90 कंस्ट्रक्शन तुम लोगों को आना ही चाहिए। So I have constructed 90 degree here. Extend this line. After this, यहाँ 90 हो गया. Now AD is 4 centimeter. With the help of rounder, you take 4 centimeter. Right. तो मैं A पे रख के यहाँ पे, मेरा तो हमेशा मर्जी होता है, पता नहीं क्यों, ये 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया इधर। अब इसको चेंज मत करना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे लिया तो इधर भी एक ले ही लो कर्व, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो अब मैं 5 सेंटीमीटर मेजर करके कट करूँगी। फाइव सेंटीमीटर आई हैव टेकन। सी दिस इज माई इंटरसेक्शन पॉइंट, सो आई एम कटिंग दिस। कहाँ पे रखा मैंने? यहाँ पे रखा था। क्यों इधर रखा? बिकॉज दिस लाइन। ओके, नाउ आई विल जॉइन दिस पॉइंट विथ दिस एंड दिस। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी 90 कंस्ट्रक्शन करते, फिर ऐसे आर्क लेते। दैट इज ऑल्सो राइट, नो प्रॉब्लम। ABCD and you write measurements 5 4 5 4. That's it. This is the rectangle. Students, with this we have completed 4.5. Actually there is one more question which is of parallelogram, that we are not going to do because already we have done so many constructions and which is enough for you for construction. So with this I have completed practical geometry, that is lesson number 4, and this is very easy lesson and it is very scoring, because at least 7 marks you are going to get from the same lesson. 7 नहीं तो 4 marks तो starting exam में ज़्यादा आता है, उसके बाद final exam में कम आएगा, but at least 4 mark का एक क्वेश्चन आता है, वो तो पॉकेट में रहेगा। देखो, क्योंकि सभी कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन दिया तो 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा, isn't it? So please keep practicing this lesson. First you practice all the angle, because angles are the basic for construction. After that do all exercise right from 4.1 to 4.5. So students, thank you for following.